Hi everyone, today we are going to study about motion in a straight line and we will be deriving equations of motion. So what do you mean by motion in a straight line? So basically if I am standing here and I am walking in a straight line, this is motion in a straight line. So in order to derive equations of motion, I have to specify some things. What are the necessary things I need to say? First thing, for deriving equations of motion, we need to consider uniform acceleration. Okay. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? What is uniform acceleration? It means magnitude of acceleration plus direction. दोनों चेंज नहीं होता, doesn't change. They both remain constant. So acceleration का direction कैसे constant रहेगा? If a particle is moving in a straight line, and magnitude कैसे constant रहेगा? अगर velocity का change constant आ रहा है तो uniform आ रहा है तो constant नहीं uniform आ रहा है तो velocity का जो change है वो अगर uniform आ रहा है तो हमारा acceleration का magnitude constant आएगा और direction कैसे constant आएगा if it is moving in a straight line. So first thing for deriving equations of motion, we will consider uniform acceleration. So now if we have uniform acceleration, then a is equal to constant. We can write like this, right? So derivative of velocity with respect to time gives me acceleration. We have already studied it. So now acceleration, if we integrate it from t1 interval to from t1 time to t2 time, and this is from v1 to v2. Let's consider v1 is the initial velocity of a particle moving in a straight line, and when it started its velocity, it is the velocity at t1, and v2 is equal to v at t2. So we need to integrate it simply. A t2 minus t1 is equal to v minus u, right? So v minus u is equal to a t. This is the interval. Okay, I am taking t is equal to t2 minus t1. So this is my first equation of motion. अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखना है? Acceleration constant है, ठीक है? First thing which is important, acceleration constant. Okay? Now we will go for the second equation of motion. हो गया ना, ये समझ आ गया? Just simple integration. Now तो हमें क्या मिला अभी? v इक्वल टू u प्लस ए टी. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, राइट? अच्छा, हमें पता है dx by dt डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी. तो चलो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ने शुरू किया था अपना मोशन एट t1 टाइम with u velocity at suppose x naught initial displacement. Okay, so x naught x, or let's say it is xi. Let's consider it as xi. अच्छा, ये बताने से पहले dx इक्वल टू v dt, ये तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे. क्या लिख सकते हैं इसको? dx इक्वल टू v dt, right? This is true. So we need, this is for a very small displacement. So in order to calculate for the entire range, what we need to do? We need to integrate. So we do integrate it. अच्छा, now ये जो v है, ये v का एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ डाल दो इसके अंदर, इसमें xf minus xi
इज इक्वल टू v का एक्सप्रेशन क्या आया, u प्लस ए टी, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे हाँ v u प्लस ए टी, इंटीग्रेट करो dt, दिस इज u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। So here I get s is equal to ut plus half at square. इसमें कुछ नहीं है, u मेरा कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट था तो u बाहर चला गया, dt को इंटीग्रेट किया टाइम इंटरवल t1 से t2 तक, प्लस at को इंटीग्रेट किया, a भी मेरा बाहर चला जाएगा तो a को बाहर ले लो, t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दो dt को, तो ये जो सिंपल इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। This is the second equation of motion. Now we will derive another equation of motion. It's very simple. और इन सबको सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना कि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नाउ तो हमें सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट्स से, अच्छा ये तो पढ़ाया था लास्ट क्लास मैंने, वी डी वी डी एक्स है ना, ये एक्सप्रेशन सिमिलर, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रहता है तो एक्सेलरेशन इस तरह निकाल सकते हैं, तो ए डी एक्स इंटीग्रेट कर दो वी डी वी, इस तरफ राइट साइड में वी डी वी इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक, यू आई से u से v तक, और ये तो आपका है ही एक्स आई से एक्स एफ तक, क्लियर है। ये दे देगा ए एक्स माइनस एक्स आई बी स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ये क्या हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, बहुत इजी है डिराइव करना, सिंपल है बहुत। आप और एक तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इक्वेशन को बस स्क्वायर कर दो। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है, a इक्वल टू डी वी डी एक्स, एक्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। डी वी डी एक्स ये कैसे आया, ये आपको पहले ही लास्ट क्लास बताया था मैंने। a इज इक्वल टू डी वी डी टी होता है, तो डी वी डी टी की जगह मैं लिख सकती हूँ डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो गया मेरा डी वी डी एक्स और यहाँ पे v। खैर अगर आपको ये मेथड फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दो। इसको अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा जो कि सब्स्टिट्यूट होगा इस इक्वेशन से, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो यू कैन यूज दैट मेथड और दिस मेथड, बोथ विल गिव यू सेम रिजल्ट्स। क्लियर, सो हमारा थर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं। v square minus u square is equal to 2as. This is my third equation of motion. Okay, clear? ये हो गया मेरे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कब मैंडेटरी, a is equal to constant. This is when only in case of uniform motion, uniform accelerated motion, जहाँ पे acceleration तुम्हारा constant रहेगा।
नाउ इस केस में हम लोग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लिख सकते हैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाई टी, है ना? हम यहाँ से ये ले सकते हैं बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t। तो टी काट दो, u प्लस हाफ at, राइट? सो इसको लिख सकते हैं 2u प्लस at, बाहर हाफ, इसको लिख सकते हैं हाफ u प्लस at। इज इट ओके? क्लियर है ना? ये एकदम कुछ नहीं है, बस 2u को स्प्लिट करके u प्लस u लिखा है। अच्छा, इसको ऊपर लिख रही हूँ, हाफ u प्लस, अच्छा ये वाला टर्म किससे इक्वल होता है? v, हमने अभी देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो v एवरेज फॉर अ रेक्टिलिनियर मोशन where acceleration is constant कितना होता है? where a is equal to constant। तो v average for a rectilinear motion where a is constant is given by u plus v। ये आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। कब यूज कर सकते हो? जब a constant है and ये rectilinear motion में हो रहा है। ओके, नाउ क्लियर है ये? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। ओके, वी स्टडीड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, नाउ वी विल बी डीलिंग विद एन एप्लीकेशन ऑफ दोज इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट द लास्ट 1 सेकेंड और nth सेकेंड। सो व्हाट डज दिस मीन? लास्ट 1 सेकेंड यानी पहले हम जानते हैं व्हाट इज nth सेकेंड। nth सेकेंड यानी आपको कभी कभी बोला जाएगा कि 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, करेक्ट? कभी कभी आपको पूछा जाएगा ऐसे। तो ऐसे सिचुएशन में इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पुट करके x निकाल देते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। क्या करना है आपको? आपको पूछा है 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है। ओके, इसका मतलब इस 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है कोई भी, तो इसी को पूछता है कभी कभी इस फॉर्मेट में कि लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, करेक्ट? तो नाउ विल बी सॉल्विंग इट। अच्छा, आपको तो अभी समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के बीच में का डिस्प्लेसमेंट हमें पूछ रहा है या लास्ट 1 सेकेंड का पूछ रहा है, तो हम इसका मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो दैट्स व्हाट वी विल बी सॉल्विंग। नाउ लेट्स कंसिडर दैट we have to calculate SNF, right? So we can say SN minus 1, that's what we studied, right? It is a displacement between 4th second and 5th second. So 5th second का displacement minus 4 second करेंगे तो हमको exactly उस 1 second का displacement पता चल जाएगा। तो using second equation of motion, just substitute un plus half an square minus u n minus 1 ब्रैकेट दे दो प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? यू एन प्लस यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं, बस एक्सपैंड कर दिया। अभी कैंसिल करो, यू एन कट गया, हाफ एन स्क्वायर, ये वाला टर्म हाफ एन स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, ये वाला माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा,
करेक्ट, यहाँ पे एक प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस यू था, ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. मेरा टर्म क्या आ रहा है, u माइनस हाफ a माइनस 2n प्लस 1, राइट. इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, 2n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एस एन एक्स. तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द nth सेकेंड. क्लियर. सो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकेंड और लास्ट 1 सेकेंड, तो आपको ऐसे डील करना है. कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर याद नहीं रह रहा है, सिंपली बस Sn माइनस 1, अगर 6 सेकेंड का पूछा है तो 6 माइनस 5 करके डिस्प्लेसमेंट जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया है यूज़ कीजिए और ये फाइंड आउट कीजिए. या फिर अगर कंपेरेटिव्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बस रिमेंबर दिस, ईजी होता है सॉल्व करने के लिए. बट सिर्फ याद मत रखो, समझो और याद रखो, अदरवाइज भूल जाओगे. नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स में गलतियाँ होती हैं. अभी प्रॉब्लम देखते हैं. ओके, नाउ let's solve a problem. Suppose there's a particle who is moving in towards positive x axis. अच्छा, और एक चीज़ इसमें, whenever we are calculating equations of motion, we need to consider that in case of rectilinear motion, motion can always occur in this direction or in this direction. So either way we have to consider the right side either positive or left side as positive. So in my case I am considering right side as positive and left side as negative. So like that, if a particle is doing motion, upward motion and downward motion, generally you can consider it as positive and negative. It's your choosing, like you can choose anything. You can choose this as negative and this as positive. In case of inclined plane also, if you are solving any problem, you can choose this direction as negative, this direction as positive. It's your wish, but once you have decided your coordinates, you cannot change it. Like once I have decided this is my positive direction, I need to solve the entire problem taking positive x axis as positive direction. Like if u is in this direction, in the positive x direction, then u will have a positive measurement. Means suppose u is equal to 5 meter per second and u is in positive x axis, so it will be u equal to 5 meter per second. But if in case if it is in negative direction, then I have to write u equal to minus 5 meter per second and then solve the problem. So generally यहीं पे गलतियाँ हो जाती है. हमेशा always check the coordinate and the coordinates which you have chosen. Okay. So we have a question on board. So there's a particle which is moving with a equal to 1 meter per second square towards positive x-axis. Its initial velocity is 5 meter per second. It has an initial displacement of x equal to minus 1 meter and its initial time is t equal to 0 and t equal to 5 seconds. We need to calculate velocity at t equal to 5 seconds, displacement in first 5 seconds, position at t equal to 5 seconds, displacement in 5th second, average velocity for first 5 seconds. Okay. So we have already studied equations of motion, right? So now this is very simple. 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, मीन्स t इक्वल टू 5 में 5 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होगा. इनिशियल वेट को दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, वन मोर थिंग which is very important, since this is a rectilinear motion, I have to choose my coordinates and with respect to the motion, right? So basically if I am going towards x-axis, positive x-axis, this is I am choosing positive, and if I am going negative towards negative x-axis, I am choosing it as नेगेटिव. क्लियर. ये आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए. आप इसको भी नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, बट वंस यू फिक्स दिस, सॉल्व इट यूजिंग दैट ओनली. सो नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at. तो हमारे लिए तो u भी इसी डायरेक्शन में है. पॉजिटिव x के लिए तो u का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1 आएगा, दिया गया है जो कि पॉजिटिव x में है, एंड t इज इक्वल टू 5. So v is equal to 10 meter per second. Now it's given displacement in
फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अच्छा, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। सो यूजिंग दैट विल राइट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है 5, t कितना है 5 सेकेंड दिया गया है, 5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर, कुछ आ जाएगा 75/2, 37.5 मीटर। क्लियर है? 25/2 50 25, ओके ठीक है। नाउ पोजीशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पोजीशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। जनरली यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट निकाल के लिख देते हैं और पोजीशन कर देते हैं, बट नो, पोजीशन पूछा है आपको, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है xf माइनस xi इज इक्वल टू s, राइट। तो पोजीशन पूछा गया है, मतलब 5वें सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड्स के बाद, नॉट 5th सेकंड, 5 सेकंड्स के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, मतलब आपको xf पूछा गया, आपके पास xi दिया गया है, तो xf इज इक्वल टू si, सॉरी s प्लस xi। s कितना है 37.5, 37.5 प्लस -1। अच्छा, मेरा x इक्वल टू -1 दिया गया था, मतलब मोशन शुरू ही हुआ था यहाँ से, अगर ये मेरा ऑरिजिन था तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली -1 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 36.5 मीटर। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड बोला है, 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग पढ़ाई किए कि SNF क्या होता है, u प्लस a/2 2n minus 1, right? So SNth, S5th, nth की जगह क्या लिखेंगे हम अभी 5th, कितना होगा ये, u is 5 plus a is 1, 2 into 5 minus 1, this will give me 5 plus 9/2, this is 9.5 meter। क्लियर है? 4.5, 5 plus 4.5। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछा है फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। इस टोटल मोशन में ये एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन नहीं, हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रह रहा है, और ये रेक्टिलिनियर मोशन भी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2, तो 10 प्लस 5/2 कितना होगा ये 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये क्वेश्चन? देख लीजिए, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप ऐसे बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, फिर हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ लिया है, बट अभी तक हमने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देखा है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। क्यों? बिकॉज इसमें हमारा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ये कांस्टेंट रहता है। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जब हम लोग कोई भी बॉडी को, सपोज ये पेन कैप है ये, तो इसको अगर मैं नॉर्मली ड्रॉप कर देती हूँ ऐसे, तो इस केस में क्या होता है, हम लोग का u 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ रहता नहीं है, एंड g दैट इज a इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अगर हम लोग का ये कब होगा, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या है, या फिर इस एग्जाम्पल में क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किसका, इक्वेशन ऑफ मोशंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि पहले इसका साइन कन्वेंशन डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम लोग काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, तो अगर 1 डिमेंशन में डील कर रहे हैं तो इसके 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, अप डाउन, इंक्लाइन में भी अप डाउन हो सकता है। तो मेरा इस कन्वेंशन में मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव लूँगी एंड
इसको नेगेटिव लूँगी, नेगेटिव बाई एक्सिस को नेगेटिव लूँगी, ठीक है। जैसे कि जब हम एक बॉल को उछाल रहे हैं ऊपर, क्लियर, तो जब उछालेंगे ऊपर तो मैंने क्या कंसिडर किया है, मैंने ये फ्रेम कंसिडर किया है, ये साइन कन्वेंशन कंसिडर किया है, जिसमें कि मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव ले रही हूँ और नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव ले रही हूँ। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, डिस्प्लेसमेंट का भी आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो जब हम ऊपर उछालेंगे तो सिंस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा, एंड बॉल को जब उछालेंगे तो यू का डायरेक्शन भी ऊपर ही होगा, पर जी हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो है ये हमेशा टूवर्ड्स अर्थ लगता है। इसीलिए तो कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो फाइनली वो नीचे आ जाती है, राइट। तो इसके लिए जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, यहाँ पे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इन केस जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे यू भी पॉजिटिव बिकॉज हमने ये कन्वेंशन चूज किया है। सपोज हम लोग एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, तो इसमें हम लोग का यू 0 है बिकॉज हम नॉर्मली बस ड्रॉप कर रहे हैं, फाइनल सपोज हमको निकालने बोला गया है। लेकिन इस केस में मैं ये साइन कन्वेंशन चूज नहीं कर रही हूँ, मैंने मेरा इस केस में साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया कि डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव लूंगी, अपवर्ड को मैं नेगेटिव लूंगी, क्लियर। तो इसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों, बिकॉज मेरा जी भी डाउनवर्ड है, यू भी डाउनवर्ड है और एस भी डाउनवर्ड है, क्लियर। आप चाहे तो आप ये कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं। आप हमेशा कन्वेंशन को जब चूज करेंगे तो उसी कन्वेंशन में स्टिक कीजिएगा। पहले आप ये कन्वेंशन अगर चूज कर रहे हैं तो इसी में स्टिक करना है, बट ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। तो दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, आप अपने हिसाब से जो बेटर है, जो इजी है समझने में, उस हिसाब से अपना कन्वेंशन चूज कीजिए। इसी में मैक्सिमम बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। सपोज एक बॉल को हमने ऊपर ऐसे थ्रो किया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो आप हमें इसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं है वेलोसिटी के साथ, तो डायरेक्टली हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे भी मेरा साइन कन्वेंशन अपवर्ड में पॉजिटिव है, डाउनवर्ड में नेगेटिव है। तो इस केस में अभी मैंने आपको बताया, अच्छा फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, जब हम बॉडी को ऐसे उछालते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जब वो बॉडी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो नीचे आना चाहता है, तो इस पोजीशन पे वी एट एच मैक्स, एच मैक्स में वी का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर हाइट तक गया फिर वो तुरंत नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वी 0 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, ये कट गया। S इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सपोज मैं G का वैल्यू बोल रही हूँ 10 ले लेने के लिए, तो यहाँ पर 10 ले लो, 25 बाई 2 इंटू 100, 12.5 by 100, this is 0.125 meter. So this is the maximum height it covers. Clear? If you have any doubts, please you are free to ask in the comment section. Thank you.